Good afternoon, beta. Good afternoon to all. Look, we have discussed our topic or functions yesterday. हम फंक्शंस को डिस्कस कर रहे थे. हमने देखा वहाँ पे हमने कल की क्लासेस में देखा बेटा कि हमारा फंक्शन क्या है. वी हैव सीन अबाउट फंक्शन, द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. देन वी हैव डिस्कस अबाउट वन फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शंस. हमने दिखाया कि हम हाउ कैन वी शो अवर गिवन फंक्शन इज वन और इंजेक्टिव, and how can we show the given function is onto or surjective. If our given function is injective as well as surjective, then it's a bijective function. Then now look in today's class again we are discussed with some important questions asked in our last year board examination, in which we are going to be show that the given function is a bijective function. Then how can we find out its inverse of, how can we find out the rules, by which rules our elements of codomain of f is associated with the domain of f there. Then start with one of the important question which is asked, which is also belongs to our NCERT exemplar problems and asked in last year board examination. Then if we have given that a function r to r, we have a given function r to r. It's defined by fx equal to x upon x square plus 1 for all x in R. Look, we have given that a function defined by f r to r, a function f r to r defined by f is equal to x upon x square plus 1 for all x in R. We have to be here given that neither 1 1 nor onto. Look, if it is given that neither 1 1 nor onto, then it's clear that we have to be so that. But it's asked in the way that it's a bijective function, then you are going to be confused with that, because if it is given that it's neither 1 1 nor onto, then you have a plus point there. You have to create one example that's you have taken two distance element and going to show that images are not equal there, and it's easy to represent that this given function is neither 1 1 nor onto. But look, when it's given as it's a check whether it's a bijective or not bijective, then you are going to face a problem there. Now first of all, look, we are going to be so that how can we check that it's a 1 1 function. We start with f of x1 is equal to f of x2, then x1 upon x1 square plus 1 equal to x2 upon x1 square plus 1. Then we are going to cross multiply it. Then we have what, x1 cube plus x1 is equal to, look, we have here x2, then it's a wrong multiplication there. Then what we have in next step, we have in next step x1 x2 square plus x1 equal to x1 square x2 plus x2. Look, then we are going to be taking all sides here. Then we get x1 x2 whole square minus x1 square x2 plus x1 minus x2 equal to 0. Then from here we are going to take out common what, x1 into x2. Then we get x2, and what we get here, we take x1 x2 common, then we get x2 here, and here get minus x1 plus x1 minus x2. Oh, we are going to take out x1 minus x2 common there, then we get x1 minus x2 common, then here we get 1, and here we get minus then we get x1 minus x2 take common, then we get here 1 and minus x1 x2 equal to 0. Then look, when this is our this part x1 minus x2 0, then we get x1 equal to x2, and then this is 0, then we get x1 into x2 equal to 1. Look, in the first view when we have seen that x1 equal to x2, ठीक है बेटा, जब हम ये देखते हैं x1 इक्वल टू x2 देखते हैं तो फर्स्ट काइंड में हमें लगता है कि हाँ ठीक है इट्स अ 1 1, क्योंकि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 से स्टार्ट किया और हमें x1 इक्वल टू x2 मिल गया, x1 into x2 इक्वल टू 1 मिल गया. बट वी हैव
वी हैव एडिशनल कंडीशन हियर दैट x1 इंटू x2 इक्वल टू 1, ये एडिशनल चीज़ हमारे पास थी बेटा. देन हाउ कैन वी, कैसे अब दिखाएं ये 1 1 नहीं है. जस्ट लुक, f is not 1 1, why not 1 1? Look, see, f of 2 is equal to f of 1 by 2. See that? Put here f of 2. What do we get? 2 upon 2 square plus 1, 2 by 5. When we are going to put f is 1 by 2 there, we also get what? 2 by 5. But 2 is not equal to 1 by 2. हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया. वो क्या बेटा कि हमारा जो फंक्शन है वो 2 और 1 by 2 पे सेम दे रहा है. क्या दे रहा है वो? सेम इमेजेस दे रहा है 2 by 5. देन ऑब्वियसली एक ही पॉइंट के दो पॉइंट के क्या वहाँ पे हमने क्या लिया, वहाँ पे क्या थे 1 1, कि अगर ये पॉइंट्स बराबर हैं तो इमेजेस बराबर होने चाहिए 1 1 के लिए, और पॉइंट्स इक्वल नहीं है तो इमेजेस इक्वल नहीं होने चाहिए. पर यहाँ पे पॉइंट्स इक्वल नहीं है, इमेजेस इक्वल है. f of 2 is equal to f of 1 by 2, but 2 not equal to 1 by 2. Then our f is not a 1 1 function. चलो 1 1 तो दिखा दिया. अभी now look, we have to also show that, we have to also use that कि ये onto it's not also a onto function. कैसे दिखाएं कि onto फंक्शन नहीं है? onto के लिए क्या करते हैं? अभी हमें इसको we have to show that कि ये onto नहीं है. चलिए, we have to show that. अभी तो फर्स्ट पार्ट किया. अगर ये onto होता है for what? For y belongs to codomain of f. There is a x domain of f. Then we have y is equal to f of x. Means y is equal to x of x square plus 1. Then ठीक है बेटा, हो गया ये. y is equal to x of 1 x square plus 1. तो x square y plus y is equal to x. क्या करते हैं यहाँ से? x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं. यही करते हैं ना, x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं. तो अभी यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? x स्क्वायर वाई एक्स अपॉन स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स. ठीक, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई. अभी यहाँ से फिर सॉल्व करें. सॉरी, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स. ठीक, वाई इक्वल टू एक्स अपॉन स्क्वायर प्लस 1 से कर रहे हैं. देन हम व्हाट वी गेट? y is equal to x upon स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स. अभी देखिए यहाँ पे जब इन टर्म्स ऑफ y आप लोग शो करने जा रहे हैं तो क्या डिफिकल्टी आ रही है? इधर को इधर ये आ रही है कि आप x कॉमन कर रहे हैं. वी गेट एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस वाई. देन आप टोटली इसको x के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे बेटा. देन ऑल्सो 1 minus x y is equal to y. Then we get x equal to what? जो हमें सिर्फ x को y के टर्म्स में एलोन ले जाना है, वहाँ पे हमें डिफिकल्टी आ रही है. क्या आ रही है? y अपॉन 1 minus एक्स वाई. हम डायरेक्टली x को y के टर्म्स में बेटा रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे. यही है, y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 से चल रहा है. तो हमें एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स. हमें क्या करना है? जब भी इसको फिर हमें क्या करना होता है कि हमें x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है. देन वी आर गोइंग टू फेस अ डिफिकल्टी दैट. क्या वो डिफिकल्टी हो रहा है? जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स. देन एक्स को एक साथ ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई. देन एक्स कॉमन किया तो यहाँ पे एक्स वाई बच रहा है. तो टोटली हमारा ये ठीक है, x को इन द टर्म्स ऑफ y एलोन अभी तो नहीं हो पा रहा है. वी कैन नॉट बी आर गोइंग टू बी एबल टू बी एक्सप्रेस आवर x in terms of y एलोन. देन ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट्स नॉट ऑनटू. पर कैसे? यहाँ पे हमें ऑनटू दिखाना पड़ेगा ना. तो क्या करें बताओ, हमें ऑनटू क्यों नहीं है? देन व्हाट वी गेट कि our fx is not equal to 1 for any x belongs to R. ठीक है, लास्ट में हमारे पास जो आई थी वो क्या आ रही थी? उसका जो लास्ट वर्ड था बेटा जो एक्स स्क्वायर था, डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जा रहा था? तो ये जीरो नहीं होना चाहिए. 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो. मीन्स एक्स वाई क्या आ रहा है? एक्स इंटू वाई नॉट इक्वल टू -1 वहाँ से हमें मिल रहा था. सॉरी, एक्स वाई
इज नॉट इक्वल टू 1, मीन्स दो एक्स इंटू वाई के नंबर के मल्टीप्लाई नॉट इक्वल टू 1, हमें वहाँ पे एक रिलेशनशिप मिल रही थी। तो मीन्स हमारा क्या है कि हमें अगर ये एबल हम ये दिखा दें कि हमारे पास को डोमेन में कोई ऐसा पॉइंट है जिसका प्री इमेज डोमेन में नहीं है तो नहीं होगा। देन व्हाट यू सी दैट इज 1 बिलोंग्स टू को डोमेन ऑफ एफ, 1 आपका को डोमेन ऑफ एफ में बिलोंग कर रहा है, डज नॉट हैव any pre-image in domain of f, therefore f is not onto। हमने क्या दिखा दिया कि हमारे पास 1 है, 1 जो को डोमेन में है, ठीक, उस 1 के लिए हमारे पास क्या बेटा, जो हमारा को डोमेन में 1 है फॉर आवर y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1, मीन्स हम जब 1 लेके चले तो हमारे पास उधर डोमेन ऑफ एफ में कोई भी प्री इमेज हमें नहीं मिल पा रही है, वो डिफाइंड फॉर्म चला जाएगा हमारे। देन ऑफ, ठीक है, तो ये क्या हो गई, देन आवर फंक्शन इज नाइदर 1 1 एंड नॉर अनटू, ठीक। तो उसको अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सेम उस टाइप के क्वेश्चंस में इट्स नाइदर 1 1 एंड नॉर अनटू, ये आपकी नाइदर 1 1 थी और नॉर अनटू था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो दैट f is end to end, our next question is that f end to end is given by f of x is equal to x plus 1 and x minus 1। f of x क्या है, is given by end to end x plus 1 and x minus 1, ठीक है। Where f of x equal to x plus 1 x minus 1, where our x is even and when x is odd, ठीक है बेटा। we have to define the function f n to n when x plus 1 if sorry ये रिवर्स लिख दिया, if x is odd and if x is even। f n to n given by f x plus 1 if x is odd and x is even is bijective। what we have to show that is bijective। हमारी फंक्शन है एन टू एन, f इज एन टू एन, जिसको हमें डिफाइन करना है कि ये हमारा फंक्शन क्या है बेटा, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक। क्या थी बाइजेक्टिव फंक्शन की डिफिनेशन, हमने क्या डिफाइन किया है बाइजेक्टिव फंक्शंस के लिए, हमने बाइजेक्टिव फंक्शंस के लिए क्या डिफाइन कर रखा है कि ये फंक्शन को क्या दिखाना पड़ेगा, वी हैव टू बी सो दैट फंक्शन f इज आवर 1 1, वी हैव टू बी सो दैट f इज 1 1 एंड f इज ऑन टू। हमें f को 1 1 दिखाना पड़ेगा और f को बेटा ऑन टू दिखाना पड़ेगा, ठीक। तो 1 1, अभी यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि टू सो दैट वी हैव टू बी गिवन दैट 2 केसेस, कि हमारा इवन है x या x हमारा ऑड है, या तो हमारा x इवन है या तो हमारा x ऑड है, हमें इसको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जब भी 2 नंबर्स लेंगे, अब यहाँ पे बेटा 3 पॉसिबिलिटीज़ आ जाएगी, देयर इज 3 पॉसिबिलिटीज़, इस प्रॉब्लम के साथ 3 पॉसिबिलिटीज़ हो जाएगी कि हम जब 1 1 देखने जाएंगे, 1 1 दिखाने जाएंगे, तो यहाँ पे हमें 3 पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करना पड़ेगा कि जो हमें नंबर्स लेना पड़ेगा वो नंबर्स हमें इस फॉर्मेट में लेने पड़ेंगे कि या तो आपके x1 x2 बिलोंग्स, जो 2 नंबर्स लेते हैं वो क्या लेते हैं, वहाँ पे 1 1 एंड ऑड, सॉरी इवन एंड ऑड की बात कर रहे हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हमें दोनों नंबर्स क्या लेना पड़ेगा, या तो दोनों इवन्स हो या दोनों ऑड हो, ठीक है, या दोनों इवन्स लें या दोनों ऑड लें, या एक उसमें से इवन और एक ऑड हो। तो हमें 1 1 के केस में बेटा इसमें ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ लेके चलनी पड़ेगी। तो फॉर 1 1 चलते हैं, फॉर 1 1, ठीक, क्या बोला मैंने, वी हैव टू बी स्टार्ट विथ 3 पॉसिबिलिटीज। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n में लिया, n क्या ले लें, बोथ आर इवन। अब बोथ आर इवन तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है।
बोथ इवनली है तो क्या मिलना चाहिए, x1 माइनस वन इक्वल टू x2 माइनस वन, तो यहाँ से हमें मिल गया x1 इक्वल टू x2 मीन्स f इज 1 1। ठीक है, ये हमने पहला चीज़ दिखा दिया कि f बेटा क्या हमारा, f इज आवर 1 1, हमने बोथ इवन से स्टार्ट किया। ठीक, और क्या लें, फिर अगेन लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n एंड बोथ आर ऑड। अब बोथ आर ऑड ले रहे हैं, फिर लिया f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। ऑड के केस में क्या डिफरेंसन है, x1 प्लस वन इक्वल टू x2 प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x1 इक्वल टू x2, 1 1 कैंसिल, अगेन f इज 1 1। नेक्स्ट क्या लेते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, थर्ड केस पे आ रहा है। देखा यहाँ पे फर्स्ट केस लिया, यहाँ पे सेकेंड लिया, बोथ इवन लिया, बोथ आर ऑड लिया। अभी क्या लेते हैं, x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड। ठीक है, अभी क्या लिया, x1 इज इवन ले लिया, x2 इज ऑड ले लिया। अब x1 इज इवन x2 इज ऑड, तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 होगा। अब यहाँ से अगर माइनस कर लें दोनों से, किसी माइनस कर लें या प्लस कर लें, देन x1 माइनस वन इज नॉट इक्वल टू x2 माइनस वन, ये भी होगा। क्यों, क्योंकि ये इवन था तो अभी ये ऑड हो जाएगा, और ये ऑड था तो ये माइनस वन से इवन हो जाएगा। मीन्स f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, मीन्स f इज 1 1। ठीक, ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक आप समझ गए बेटा कि डिस्कशन की क्या जरूरत है यहाँ पे। लुक, बिकॉज इट्स गिवन दैट आवर फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम n to n जा रहा था, f इक्वल टू x प्लस वन इफ x इज ऑड, x माइनस वन इफ x इज इवन, इज बाइजेक्टिव। तो यहाँ पे हमने 1 1 क्या किया कि हमने वहाँ पे, क्योंकि हमें दो एलिमेंट्स लेके चलने पड़ते हैं, और अगर दो पॉइंट्स हैं इनकी इमेजेस इक्वल है तो 1 1 है, दो पॉइंट की इमेजेस इक्वल नहीं है तो पॉइंट्स इक्वल नहीं है तो इमेजेस इक्वल नहीं है तो भी 1 1 है। देन यहाँ पे ये 1 1 एंड ऑड का केस था, इसलिए हमने x1 x2 क्या किया, इस तरह से लिया कि दोनों चलो इवन से, बोथ आर इवन, बोथ आर ऑड, वन इज इवन, वन इज ऑड। उन तीनों केसेस में हमने क्या चेक किया कि और गिवन फंक्शन f डिफाइंड बाई f इज n to n डिफाइंड बाई fx इज x प्लस वन व्हेन x इज ऑड एंड x माइनस वन व्हेन x इज इवन। हमने थ्री केसेस डिस्कस किया जहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, फंक्शन हमारी बेटा क्या है, क्या है ये 1 1 है। अब बाइजेक्टिव शो ही करना है तो ऑब्वियस है कि f को क्या शो करना है, तो शो f इज ऑन टू। अब हमें f को ऑन टू शो करना है, तो कैसे शो करते हैं f को ऑन टू के लिए जाते हैं। तो अगर हमारा f है, अगर बेटा वो ऑन टू फंक्शन है तो क्या करेंगे उसको शो करने के लिए ऑन टू के लिए, और यहाँ पे हमने थ्री केसेस लिए, तीनों में 1 1 दिखा दिया, अभी ऑन टू के जाना है। तो ऑन टू केस में क्या करेंगे, क्या होता है, कहाँ से स्टार्टिंग होती है, कोई भी पॉइंट कहाँ से लेते हैं, कोडोमेन में, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ n, y ले लिया कहाँ पे, कोडोमेन ऑफ f में ले लिया। तो इफ y इज इवन, इवन और ऑड की बात हो रही है तो y इज इवन, y हमने इवन से स्टार्ट कर लिया, तो जब कोडोमेन में तो y इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो y इक्वल टू इवन लिया, y इक्वल टू एफ एक्स, और जब y को लिया क्या हमने चेक, वी आर गोइंग टू चेक दिस, y इज इवन और y इज इवन लेके चले, y इक्वल टू एफ एक्स, पहला x प्लस वन लेके चल रहे हैं। ठीक, y इक्वल टू x प्लस वन, y इवन लिया हुआ है, y इज इवन, देन इफ x इज इवन तो हमें वहाँ पे चाहिए। ठीक, अभी चलिए अभी y इज इवन ले लिया तो हमारा फंक्शन क्या है, वो x ऑफ माइनस वन पे जा रहा है, तो y इक्वल टू x माइनस वन, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, y प्लस वन। अब क्या रख के देख लें, f ऑफ y प्लस वन इज वॉट, y प्लस वन माइनस वन, कि हमारी y इवन थी, मीन्स f ऑफ y प्लस वन इक्वल टू y। ठीक है बेटा, दूसरा इफ y इज ऑड देन y इक्वल टू f ऑफ x, और की केस में क्या है x प्लस वन, तो यहाँ से क्या मिलेगी x इक्वल टू y माइनस वन,
अब एफ ऑफ वाई माइनस वन पे क्या आएगा, एफ ऑफ वाई माइनस वन इज वॉट, क्योंकि आपका वाई और लेके चले हैं, और के केस में क्या है प्लस वन, वाई माइनस वन प्लस वन, देन वी टेक वॉट एफ ऑफ वाई माइनस वन, वी गेट अगेन वाई देयर, लुक मीन्स हमारे पास जो वाई है फॉर वाई कोडोमेन ऑफ एफ, अब जब हमारा वाई कोडोमेन ऑफ एफ में है तो उसके लिए हमारे पास डोमेन में इमेजेस मिल जा रहा है, फॉर ऑल वाई प्लस वन वी गेट वाई देयर, फॉर ऑल वाई माइनस वन वी हैव अगेन प्री इमेजेस इन द डोमेन ऑफ एफ। तो डोमेन ऑफ एफ में हमें दोनों केसेस मिल जा रहा है, मीन्स आवर एफ इज व्हाट ऑन टू, नाउ आवर एफ इज ऑन टू, आवर एफ इज 1 1 in all three cases, then f is a बाइजेक्टिव फंक्शन, f हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। दूसरा तरीका क्या था आपको सेम, कि आप यहाँ पे दिखा लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स एन टू एन लेयर आपका एन टू एन जा रहा है, एफ एक्स एक्स प्लस वन पे जा रहा है, वन अब ऑड देख लीजिए ऑड ले रहे हैं, ऑड का क्या होता है वन, तो वन का इमेज टू के साथ जा रहा है, थ्री का फोर के साथ जा रहा है। बात समझिए बेटा, अगर रफली बात करते हैं और ऑन टू अगर आप इस तरीके से ऑन टू आपको दिखाने में दिक्कत हो गई है, और इस वन वन की भी आपको दिक्कत है, तो व्हाट इज योर सेकेंड मेथड टू शो दैट, कि आप दिखा सकते हैं वन वन कि आपने दो पॉइंट लिया, वो आपने दिखा दिया एफ ऑफ वन, वन आपका क्या था बेटा, और टू आ रहा है, एफ ऑफ टू क्या आ रहा है, वो टू इवन है, वो वन आ रहा है, आपने क्या दिखा दिया, वन नॉट इक्वल टू टू, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ टू, रिवर्स हो जा रहा है। तो ये तरीका था आपको सेकेंड मेथड वन वन दिखाने का। ऑन टू क्या तरीका था, अब देखिए यहाँ पे जो आप दिखा रहे हैं एफ ऑफ वन, आप एफ ऑफ वन निकालेंगे तो उसकी वन ऑड है, टू आएगा, एफ ऑफ टू क्या आएगा, वन आएगा, एफ ऑफ थ्री क्या आएगा बेटा, ऑड है, फोर, एफ ऑफ फोर क्या आ रहा है बेटा, थ्री, एफ ऑफ फाइव क्या आएगा, फोर, एफ ऑफ सिक्स क्या आएगा, फाइव। अभी ध्यान से देखो आप, 1 2 3 4 5 6 ये आपस में क्या हो जा रहा है, मीन्स अभी हम क्या दिखा सकते हैं इधर को, कि जो हमारा रेंज है इज इक्वल टू कोडोमेन, ऑब्वियसली आवर रेंज इक्वल टू कोडोमेन, जितने भी ऑड है वो इवन से एसोसिएट हो रहे हैं, और जितने भी आपके इवेंट्स हैं वो ऑड से एसोसिएट हो रहे हैं, मैपिंग, ठीक है। तो हमारा जो रेंज है वो कोडोमेन है, व्हेन आवर रेंज इक्वल टू कोडोमेन देन आवर एफ इज ऑन टू, हेंस आवर फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो यहाँ पे दोनों केसेस की बात हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एफ एन टू आर ये फंक्शन डिफाइंड एज, आपका एफ एक फंक्शन है जो एन टू आर है बेटा, और इट्स डिफाइंड एज, आवर एफ एक्स इज डिफाइंड एज 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, देन वी हैव टू शो दैट एफ ऑफ जो हमारी फंक्शन है वो, लुक वी हैव टू बी, now look we have a function f n to r is, we have function f n to r is given by, तो हमें look what we have to define this, कि हमें f is n to r, we have function f defined as f is equal to 4x square plus 12x plus 15, then we have to be show that f n to s, where s is the range of f, then we have to function define f n to s where s is the range of, ठीक है, हमें यहाँ पे दिखाना है if f is n to r be a function defined as f is equal to this, so that f our n to s where s is the range of f, s is what, range of f is invertible, then we have to find out f inverse, then we have to find out f inverse,
ठीक है। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू बी एफ एन टू आर बी। देखिए क्यों, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पे। एफ एन टू आर एक फंक्शन है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज 4x² + 12x + 15। देन वी हैव ए फंक्शन एफ एन टू एस, हमारे पास है एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है एन टू एस, जहाँ पे एस क्या है, वो रेंज ऑफ एफ ऑफ इन्वर्टिबल, एस इज रेंज ऑफ एफ। देन वी हैव टू शो दैट कि जो हमारा एफ एन टू एस है वो इन्वर्टिबल हो जा रहा है वहाँ पे। देन वेयर एस इज रेंज ऑफ एफ इज इन्वर्टिबल, देन फाइंड, वी हैव टू फाइंड द एफ इन्वर्स। ठीक, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, इन्वर्टिबल है या दिखाना है, वहाँ पे शो करना है, तो वही काम है। बाइजेक्टिव हमें शो करना पड़ेगा कि फंक्शन हमारा 1 1 है और बाइजेक्टिव है। देन टू शो एफ इज 1 1, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 स्टार्ट करते हैं। देन वी हैव ठीक है, सॉरी बेटा 15 कैंसिल कर लिया। तो x1 - 12x2 इक्वल टू 0, यहाँ से 4 कॉमन कर लिया। देन वी हैव x1 - x2 x1 + x2, यहाँ से 12 कॉमन कर लीजिए। ठीक, 4 कॉमन हो जाएगा, x1 - x2 कॉमन हो जाएगा। देन वी हैव हियर x1 + x2 एंड हियर वी गेट +3 इक्वल टू 0। फिर अब क्या होगा, आइदर दिस 0, 4 तो 0 होगा नहीं, आइदर दिस 0 और दिस 0, 4 0 नहीं होगा, x1 + x2 + 3 0 नहीं होगा। ठीक है, आपका ना तो 4 0 होना है बेटा, ना आपका x1 + x2 + x3 0 होना है। ठीक, तो क्या 0 हो जाएगा, x1 - x2 0 होगा। In this case we have x1 = x2 and our f is what, 1 1। यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया कि हमारा बेटा f क्या है, वो 1 1 फंक्शन है। क्या बेटा, then our f is what, it's our 1 1। ठीक, हमने f को 1 1 दिखा दिया, f 1 1 हो गया। now we are going to show that what f is onto, क्योंकि हमें इनवर्स की बात कर रहे हैं, and we have to be show that our f is also onto function। then क्या होगा onto के लिए, let some y belongs to कहाँ पे r, then there exists x belongs to where, in domain of n, such that y equal to fx। ठीक है, अब y equal to what is our fx, 4x² + 12x + 15। ठीक है बेटा, हो गया। अभी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ये तो आपका 2x का होल स्क्वायर है। देन 12x, we can break our 12x as what, 2 × 2x means we need a +3 means आपका 9। then y = 4x² + 12x + 9। ठीक है, तो हमारा 4x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। then we get +6 here। now what is we have y = what, 2x + 3। अब चेक कर लीजिए आप, 4x² + 9 + 2 12x हो गया +6। then from here we have 2x + 3 whole square is equal to y - 6। then 2x + 3 is equal to √y - 6। then 2x is equal to √y - 6 - 3। then we get x equal to, sorry it's 6, y - 6 - 3/2। ठीक, अभी हमने क्या दिखा दिया यहाँ पे बेटा कि y = fx। अभी क्या दिखा दिया कि हमें जो पॉइंट है उसकी प्री इमेजेस क्या मिल रही है, √y - 6 by √y - 6 - 3/2, ये हमारा। देन यही हमारा क्या हो जाएगा, देन आवर f इज व्हाट, f इज आवर onto फंक्शन एंड f ऑफ इनवर्स y हमें डिफाइन करना था। देन f और इनवर्स फॉर, सॉरी यहाँ पे y के टर्म्स में, f ऑफ इनवर्स x इज नाउ डिफाइंड एज x - 6 - 3/2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, तो आज की क्लासेस में हमने क्या देखा, लुक वी हैव टू बी सीन दैट प्रॉब्लम्स, हमने वहाँ पे क्वेश्चंस देखा कि हाउ कैन वी शो दैट द फंक्शंस ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने लाइन से कंफ्यूज किया था
एक्चुअली आपको वहाँ पे इन्वर्स की बात करनी थी, इन्वर्स पे ही आपको डिस्कशंस करना था, आपको वहाँ पे दिखाना था कि फंक्शन 1 है ऑन 2 है, अब उसका एफ ऑफ n2s एग्जिस्ट करेगा, जो डिफाइंड हुआ कैसे, एफ ऑफ इनवर्स ऑफ x इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6 माइनस 3/2। देन थैंक्स टू ऑल।